One of the biggest achievements for a teacher is when their students not only just learn, not only just clap, not only just praise, but they do one thing, which is implementation. They act upon what was taught, give you back feedback on what was the progress and what happened, what did not happen. And I think that's one of the most important things for a teacher, because that makes them understand where they're standing on the spectrum. For me as a teacher, is also very important that I get feedback continuously on what people have acted upon, not their opinions on ye acha tha, ye bura tha. I don't want that. I acted upon this result came, which helps us decode things faster, better, and give it more to the audience. And there are very few selected people that are actually able to go deep down into actionable insights and give it back to the teacher. And one of my clients who has done that is Abdullah Ansari. This video is not about me. This video is not where I teach. This video is where he will teach. He was part of the ICE 2.0 40 lakhs plus GST mastermind for a full year. I think 1.5 years. He has been one of the oldest students, applied technically 80% of the things. And he has always given me feedback on this work, this did not work, I need to change this, and everything like that. And this dedication is just what makes me feel, to give more to that particular person. I'll just play a video over here in which he's teaching his wife about the concepts of 2.0. दूसरा ये बोल रहा है टेक बिग रिस्क ऑन L0 L1 L3 में कम रिस्क लेना है। तो L3 में जाके जो डायमंड में हम लोग बार बार उंगली करते हैं ना, वो नहीं करना है। L0 में कर दो, L1 में कर दो, चलेगा। L3 में नहीं करना है, ठीक है। लेस रिस्क ऑन L3, फोकस ऑन इंक्रीजिंग द कन्वर्जन परसेंटेज ऑफ L3। अच्छा, तो फिर वो ये बताया है कि अगर L3 में 10% कन्वर्ट कर रहे हो, तो अगर 20% कन्वर्ट करने लग जाओ तो कितना मैसिव इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर हमारा L3 हमारा कन्वर्जन परसेंटेज हमारा ऑफलाइन में डबल हो जाए, और अगर हमारा प्राइस भी डबल हो जाए, तो हम 4x पे आ जाते हैं। 4x पे आ जाते हैं, और वो 4x अलग ही होता है क्योंकि प्राइस जो बड़ा हो गया। आप L0 में डबल कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, L2 में करोगे आपको कुछ ये नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। L3 में करोगे मेजर फर्क, ठीक है। अब इसका इंक्रीजिंग द कन्वर्जन परसेंटेज ऑफ L3, इसका क्या है एक तो टेकिंग द ऑफलाइन इवेंट, ठीक है। पता है मुझे, वो बड़ी बात पता। In offline event, the primary objective would be that we have to give them practical results. Like करवाना है उनसे। और वहीं पे उन्हें रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं आए या कुछ ऐसा, वो नहीं, रिजल्ट वहीं पे आए, ठीक है। अगर वहां पे रिजल्ट आ गया ऑफलाइन इवेंट में, तो हमारा ये कर देगा, कन्वर्जन रेट इंक्रीज कर देगा फॉर हायर टिकट। वो 3 दिन के इवेंट में अगर हमको उनको बुलाया तो उनको लगा यार इसमें तो 2 दिन का, इसमें तो हमको ये करवाया था, तो ये तो इसने यहाँ में करवा दिया अचीव, तो बड़े में क्या करवाएगा अचीव, वो वाला चीज हो जाएगा ना। हाँ, उसके बाद वाई ऑफलाइन इवेंट, द प्रॉब्लम इज सॉल्व फास्टर, ठीक है। सेकेंड बोलता है जो इवेंट लोकेशन जो है वो बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली होना चाहिए, जैसे गोवा, ठीक है, मजा आएगा लोगों को, दिल्ली में नहीं आएगा। So as you saw, it's a very cute moment because husband and wife both are just sitting and learning and just repeating the concepts in their head and revision and all of that stuff. But this video is all about Abdullah sharing all his wins, all his implementations, all his learnings from the 2.0 mastermind of 1 year. I hope you like it. If you like these kind of videos, let me know. Especially I have a lot of them because a lot of my clients have taught what I have taught to other people of the mastermind itself, so that we can do a revision together. So without any delay, let's get into it. I have with you 11 points where I'll just share with you कि क्या-क्या 11 points है जो इतने टाइम में implement किए हैं और उसको रिवाइज करेंगे। Are you ready for the revision? Ready? All right. So guys, so the first thing, so 2 great learnings I shared, इसमें एक और ऐड कर देता हूँ मैं, ये भी याद आया मुझे। क्या था फर्स्ट वाला अपना? फर्स्ट वाला नहीं, फर्स्ट वाला टेक बिगर इसमें था, to reach somewhere, you need to get from somewhere, ठीक है। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा बट स्पीड से चलेंगे। प्लीज इफ यू थिंक दैट Abdullah I'm not able to pick up, please you have the every right to stand on your seat and say शांत हो जा, थोड़ा स्लो चलो, चलेगा। अगर मैं तेज जाता हुआ दिखा आपको, ठीक है। So guys, one thing I wanted to share last time but I could not share was a hack which gives me consistent conversions in my webinar, which actually contributes to a consistent 25% minimum conversions in my webinar.
So few days back, we scaled up our campaigns, and we had around 260 people in our room. 100 लोग drop हुए end तक, 160 people were sitting, and out of that 50 people bought. And the price point was 15,000. So that was 7.5 from one masterclass, and then ad spend was 1.2. So one thing does not contribute to all these things. It's a accumulation of a lot of things that contributes to it. So I have one thing which I learned long ago. Some of you might be knowing it, some of you might not be knowing it, but I'm just going to share with you today. So before you are about to pitch in the webinar, जैसे आप pitch करने start करने वाले हो, अगर आप बातों से बोलोगे कि नहीं you now realize what कितना क्या आपको realization हो रहा है, आपको कितना सीखना है और ये सब, वो एक गलत चीज है. But if you give them some facts, experiential facts in the webinar, they are like, मेरी आंखें खुल गई. So like Ruma is into a health niche, Rohit Bhai is into the network marketing niche, sales niche. So we prepare a testing scorecard. What do we prepare? A testing scorecard. I'll share with you that scorecard right now. That's a series of 7 questions. It is designed in such a way, before just about to pitch, I ask my audience, guys, अब मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा शेयर करूंगा जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी, और ऐसी खुलेंगी आप अपना सर दीवार में मारने लगोगे. तो अपने आप को रोक के रखना. तो आपको बहुत बुरा लगेगा जब भी आपको मैं दूंगा. तो दे आर लाइक ठीक है. तो आई सेंड देम अ फॉर्म. इट इज अ सीरीज ऑफ 7 क्वेश्चंस. वो इस तरीके से डिजाइन है कि उनका स्कोर 33 से नीचे आता है. ठीक है. तो उनका स्कोर 33 से नीचे आता है, और जब 33 से नीचे स्कोर जाता है तो मैं एक शीट खोलता हूं. उस शीट पर लगी होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग. क्या लगी होती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग. तो जैसे 33 से वो नीचे जाता है, वो रेड 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 होता हुआ दिखता है, और रेड देख को तो दिल की धड़कनें तेज होती है. होता है कि नहीं? सो एग्जैक्ट पिच आई एम गोइंग टू शेयर. जस्ट बिल्कुल इसको एग्जैक्टली कर लेना, आपसे नहीं कर रहा हूं. इससे मैंने 30% कन्वर्जन निकाला है. 30 आई थिंक 30 से ऊपर शायद मैं नहीं गया हूं, 31% गया हूं. देख 30% कन्वर्जन मेरा आया है इससे. Check. आवाज आ रही है ना? अभी आई. Check. Yes. So I'm just going to share with you that form. So this is the PPT. I have opened up all the PPTs. So ये देखोगे आप, ये स्क्रीन है. देखोगे ये फोटोग्राफी बिजनेस स्कोर है. ये वाली स्लाइड मेरी खुलती नहीं है, मेरे सामने होती है. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, गाइस दिस इज अ थिंग, दिस इज अ 1 क्वेश्चन फॉर्म दैट यू नीड टू फिल, और ये फॉर्म उनको मैं देता हूँ. ठीक है. अभी दिस आई डिस्कस विद हिमांशु लॉन्ग बैक सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट. सो आई थिंक if you do not know it, I'm just going to share with you. Right. अच्छा ओपन नहीं हो रहा. ठीक है, जब तक ये ओपन हो रहा है, what I'm going to do, I'm just going to share this thing. Yes. So अभी क्या होता है, सुनते रहना. अभी ये होगा कि जब आप उनको ये फॉर्म दिखाओगे ना, तो जिनका स्कोर आएगा 60-30 वो खुश हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? खुश हो जाएंगे. तो ये सामने खुला रहता है उनके. क्या रहता है? ये सामने खुला रहता है. क्या लिखा हुआ है इसमें? Just try to edit. 0 से 33 लिखा हुआ है, रेड जोन अलार्मिंग, यू कैन बी फिनिश्ड. क्या लिखा है? इसको अपने नीच के हिसाब से चेंज कर लेना. ठीक है. किसी के कुछ हेल्थ वेल्थ का, तो यू कैन लीव द वर्ल्ड, दुनिया से आप जा सकते हो. ठीक है. एंड उस समय ऐसा होता है, लोगों की सबकॉन्शियस ब्लॉक, दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है. जब वेबिनार में कोई 1 घंटा बैठ गया तो दिमाग चलता ही नहीं, कुछ भी बोल दो. तो ऐसा है. जैसे कल रात को मैं हिमांशु के साथ था, हम बैठे हुए, तो मैंने बोला हिमांशु एक ऐसा आइडिया लाते हैं, आपको सुन के बहुत मजा आएगा, कि हम पहले अपना प्राइसिंग डालते हैं, फिर हम एक टाइमर लगाते हैं टाइमर, फिर चलता है, फिर बोलते हैं गाइस द टाइमर इज गोइंग ऑन. बोलो हिमांशु, मुझे अभी एक चीज क्लिक करी, एक काम करते हैं, विल गिव द प्राइसिंग इनसाइड, और हम बोलेंगे इस पेज पे जाओ. वो पेज पे आप जाओगे, एंड वहां पे एक टाइमर लगा होगा. ठीक है. टाइमर लगा होगा. जैसे जैसे टाइमर चल रहा होगा ना, 1-1 सेकंड, तो 100 रुपए बढ़ रहे होंगे. तो मान लो वो सेकंड टाइमर चला 3 सेकंड, तो 50 रुपए बढ़ गया. उसको इतने धीरे धीरे बढ़ाना है कि उसको लगे टाइमर चल रहा है, तो ये नीचे प्राइस भी बढ़ रहा है. डू यू गेट दिस? तो हिमांशु सेड कि हाँ, मैं 20 लोगों को फ्री दूंगा, और उसके बाद टाइमर स्टार्ट करूंगा. 1-1 सेकंड से 5-5 रुपए बढ़ेंगे, 2-2 सेकंड से. तो उनको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज्यादा क्वांटम जंप हो गया प्राइस में, अब मुझे नहीं लेना है. बट ये वाली भी फीलिंग रहनी चाहिए, क्या 1 सेकंड चल रहा है, 10 रुपए बढ़ गए. अगर मैंने 10 सेकंड लेट किया तो 100 रुपए बढ़ गए, और उस समय उनका पॉइंट्स ब्लॉक होता है. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट केम अप बिकॉज ऑफ द फियर. बट व्हेन दिस कम्स अप टू यू हैव टू एक्सपीरियंस सच. अदर गाइस, ये आपके 3 पैटर्न्स हैं.
0 to 33, 33 to 66 and 66 and above. So जो लोग 0 से 33 के बीच में है, the situation is alarming. You can be finished. The people who are into the yellow zone, there is still a room for you to grow. And the third, the people जो अपने आपको 30 मार खान समझेंगे, जिनका सब कुछ सही आएगा, उनके लिए क्या लिखना है? You need to scale. अभी भी बहुत रूम बाकी आप नहीं कर रहे हो, लेकिन अब सवाल आता है इसका अगर 100% 100 नंबर आ गया तो उसको क्या बोलोगे? उसको इग्नोर करो। ठीक है, उसका कुछ नहीं बोलना है। Yes, I ordered the test for you. Right. So I'll share with you how this conditional formatting work. I'm just taking you in किसी का वाईफाई है वर्किंग जो स्पीड से मुझे दे सकता है हॉटस्पॉट एंड ऑल। दीपांशु आईफोन इज देयर। सो दिस इज अ फॉर्म, ठीक है, आप इसको हेल्थ स्कोर कार्ड बना सकते हो या कुछ भी बना सकते हो। इफ यू आर नॉट एबल टू सी दिस, खड़े होकर मुझे बोला कि भाई दिख नहीं रहा है, इसको जूम कर लो, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ईमेल, नेम, व्हाट्सएप नंबर, टू, ये 7 क्वेश्चन है। इसको इंग्लिश में भी लिखना, हिंदी में भी लिखना, ठीक है। कुछ जनता इंग्लिश में समझती है, कुछ जनता हिंदी में समझती है। इफ यू आर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ये 7 स्कोर डिजाइन हो गया। गॉट इट? 7 सवाल है, यस या नो के सवाल है, गूगल फॉर्म में क्विज बन जाता है। अबे व्हाट यू विल फाइंड एट द बैक एंड, यू विल फाइंड दिस एट द बैक एंड। सो उनके सामने ये शीट खोलनी होती है एंड दिस विल कम अप। व्हेन यू आर शोइंग दिस शीट, you do not show the date. When you are showing the sheet, you do not show the date. Where is the date? Date column. This is the date column. Can you tell me why you do not have to show the date? हाँ? Yes. जब इसको ऑटोमेशन में प्ले करोगे तो लोग कहेंगे अरे आज तो 18 तारीख है, 16 तारीख के लोग कैसे दिख रहे हैं। डू यू गेट दिस? जब ये चल रहा होगा तो आपको एक बात बोलनी है गाइस। मैं हो सकता है आप सब लोगों के नाम न ले पाऊं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सबके नाम लेने की। अगर कोई नाम छूट गया तो इस शीट में होगा, मैं मिस कर गया हूँ। Why? Because जब नेक्स्ट टाइम वेबिनार ऑटोमेशन पे चलेगा आपका, तो उनको ऐसा ना लगे कि यार मेरा नाम तो इसमें आया नहीं। डू यू गेट इट? डू यू गेट इट? ठीक है। सो नाउ यू विल सी, ये इनके रेड स्कोरिंग है। ये वाला कॉलम छिपा रहता है। दिस कॉलम इज ऑल हिडन एंड दिस इज ऑल रेड दिख रहा है। एंड देयर इज अ फार्मूला ओवर हियर। इफ यू गो ओवर हियर, यू गो टू फॉर्मेट, यू गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड दिस इज द फार्मूला दैट यू पुट ओवर हियर। अगर इसकी यहाँ ये नहीं दिख रहा है, लेफ्ट में आपको दिख रहा है, दिस इज द फार्मूला। If the value is less than 33, अखिलेश भाई आप तो बोल रहे हो क्या बच्चों वाली चीज, इसको हटाओ जल्दी से, ऐसा कुछ चलेगा ना? एक अखिलेश भाई के लिए बच्चों का खेल है ना ये, इसलिए 0 to 33, 33 and all. Got it? Got it? So the moment they see their score, they are like, oh my god, and then make them type, guys please type your score. Do not feel bad, it's okay. क्या आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले भी मेरा भी ऐसी स्कोर आता था। Got it? Got it? And then move on. And just after this is done, you start the sales bridge. Got it? Got it? जो लोग अप्लाई नहीं करते अप्लाई कर लेना। It has worked beautifully for me. Yes. हाँ, मैं तो अभी आपको immediately भी ग्रुप में शेयर करता जा रहा हूँ सारे कुछ, so that बात का कोई चक्कर ही नहीं रखना। Just hold on a second. Yeah, form. अब्दुल्ला आपका सेल्स ब्रिज बताओगे क्या? सेल्स ब्रिज? ब्रिज सेल्स ब्रिज मेरे 2 होते हैं, ठीक है। Would you like to hear the sales bridge? Yes, please. All right. So my sales brief is, there are 2 kind of sales brief which I do in my webinar. So there are some people जो पेट में दबा दबा के बात करते हैं। मैंने आपके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, उसके बारे में आखिर में आपको शेयर करूंगा, ठीक है। मैं ठीक है डोंट नो ऑफेंस टू एनीवन, ये बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मैंने आपके लिए कुछ तैयार किया, मैं आखिर में शेयर करूंगा। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। When you are onto the sales brief, you have to be very clear, confident, and to the point. And to the point means to the point. So when you are into the sales brief, मेरा सेकंड 1 घंटे के बाद का एक सेल्स ब्रिज होता है, तो लोगों को माइंड बॉगल करता है। तो there are some moments into your webinar where the audience gets heat up. Yes or no? Heat up हो जाती, पगला जाती है, उनको समझ में नहीं आता क्या कहूँ, ऐसे करने लगते हैं। So that's so at that point of time, so in my second secret, I share with them the second secret, which is the actual secret, and I tell them, guys, सुनते हैं ना, you can record it as well. It has worked for me. It has been working for me. It's a very simple thing. Guys, कितने लोग चाहते हैं कि मैं ये सिस्टम आप अपनी कंपनी में, आप अपनी हेल्थ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं? यस। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपके साथ आपको हेल्प करूं और आपके साथ काम करूं, आपको इस पॉइंट से आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए? यस। गाइस, जो मैंने आपको अभी सिस्टम दिखाया, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इस मास्टर क्लास के अंदर ही आप ये सिस्टम सीख जाओगे? और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, इसको सीखने में टाइम लगेगा? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए टेक्स टाइम। सुनते रहना, मैंने
जिसको सीखने में टाइम लगेगा उसको मैंने बोला टीटी। यू हैव टू गाइड द डायरेक्शन ऑफ द वेबिनार अकॉर्डिंग टू योर वे। अगर आपने ये बोल दिया कि कितने लोगों को ऐसा लगता है किसी मास्टर क्लास के अंदर सीखोगे टाइप करो एमसी, तो वो लोग एमसी टाइप करने लगेंगे। डू यू गेट इट? बट अगर आप बोलोगे कि ये कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इसको सीखने में समय लगेगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करो टेक्स टाइम, तो टीटी टाइप करेंगे। तो जो बोलते ना इसी में सीखना है मुझे, उनको ध्यान नहीं देना है, टेक्स टाइम करना। टीटी आ गया आपके सामने टीटी। देन यू से टू देम अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग गाइस, अगर मैं चाहूं भी, क्या बोलेंगे? मैं ऐसे बोलता हूं, ठीक है, इफ इट रेजोनेट्स विद यू जस्ट हैव टू सी, अगर मैं चाहूं भी तो भी मैं आपको इस सिस्टम को इस मास्टर क्लास के अंदर नहीं सिखा पाऊंगा, ठीक है? बिकॉज दिस इज नॉट अ स्विच कि इसको बंद किया चालू किया ये आपके सामने चल गया। दिस इज अ प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम। कितने लोगों को लगता है यस ये एक प्रोसेस है, टेक्स टाइम? यस, PRS टाइप कर दी, प्रोसेस, अमेजिंग। और जब आप ये बोलो कि कोई स्विच नहीं है तो आप अपना वीडियो बंद कर दो उस स्विच पे, कि ऐसा कोई स्विच नहीं कि मैंने एक बटन दबाया मेरा वीडियो बंद हो गया और स्विच दबाया मेरा वीडियो आ गया। ये ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैंने स्विच दबाया ये बंद हो गया, स्विच दबाया कल से सिस्टम चालू हो गया। तो यू हैव टू शो देम एक्सपीरियंसली ओवर देयर। उनको समझ में नहीं आता है, उनका माइंड चल नहीं रहा होता है, उनको दिखाना पड़ता है कर करके। तो दे आर लाइक ठीक है, इट इज गुड ओके। सो गाइस, फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न and implement this system, I am very much open about it. I have designed a program for you which took me 1.5 years to design for you. ये कैसा प्रोग्राम है? इससे पहले आप टेस्टिमोनियल दिखा चुके होते हो कुछ, यस और नो? दिखा चुके होते हो कि नहीं? 1 घंटा 1.5 घंटा जब बिता दो तो टेस्टिमोनियल दिखा चुके होते हो ना। So you just have to say over there कि गाइस जितने भी आपने पीछे लोग देखे, ये नहीं बोलना है कि इसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा ये सिखाऊंगी, गए वो जमाना। You just sell the result। कि जितने भी आपने पीछे लोग देखे जिनके भी रिजल्ट्स हैं वो सब लोग इसी प्रोग्राम का हिस्सा है, क्या? ठीक है। सो इट क्रिएट्स अ वैलिडेशन। अच्छा, 2-3 इन्होंने टेस्टिमोनियल दिखाए इतने बढ़िया ये इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। एंड गाइस, कितने लोगों को ये लगता है कि ये प्रोग्राम फ्री होगा? कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए FR, आप चाहो तो बोल सकते हो। और कितने लोगों को लगता है पेड होगा? पेड टाइप कर दीजिए। अगर आपकी पेड जनता है तो पेड टाइप करेगी ज्यादा, अगर फ्री की जनता है तो फ्री टाइप करेगी ज्यादा, सुन लेना, ठीक है? तो यू हैव टू सी कि कैसे आप कर रहे हो। देन पेड आ गया। Guys say कि guys, let me tell you, this program has a price, but we give them at a regular price. But today at this end of this master class, I am going to give you at a very special price. आप कुर्सी पर से उछल पड़ोगे इसको लेने के लिए। This is my guarantee to you. लोग क्या बोलता है पता है? Those of you who are interested, you can join. This shows कि आप अपने प्रोडक्ट में कन्विक्शन का कहीं लॉस है। Is it समझ में आ रहा है? इंटरेस्टेड की क्या बात है? कुर्सी पर से उछलोगे लेने के लिए। You will jump up from the stage to take it. This is my guarantee. And the way, and I said, look into my eyes. You will jump from your stage. ठीक है? तो बोलता है okay. So कितने लोग इसका हिस्सा बनना चाहेंगे? I want to become a part. ठीक है? And then there I give them a form. जो लोग इसका हिस्सा बनना चाहेंगे अभी इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। बाद में मत बोलना कि फॉर्म नहीं मिला क्योंकि आप इसका पार्ट नहीं बन पाओगे, because there is a very special process. Then they fill up a form. If you carry this confidence on to the second pitch, they will be able to see this confidence in you. ठीक है? वो शीट फिल करेंगे। लगभग मेरी 8-10 हजार की लिस्ट हो चुकी है। उसका लुक लाइक बना दो, कस्टम ऑडियंस चला दो, सेल्स टीम को दो, वहां से डेटा मिल गया, ठीक है? एंड देन वो लोग सीरियस आपके पास आ गए। एंड दिस इज अ ट्रायल क्लोज। एंड देन फिर दूसरा क्लोज होता है सेशन के बिल्कुल पिच से पहले। जैसे मैंने ये फॉर्म दिया, फोटोग्राफी बिजनेस स्कोर का फॉर्म दिया, इससे जस्ट पहले, इसके जस्ट बाद गाइज यहां से आपके आगे बढ़ने के 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपनी लर्निंग को यहीं स्टॉप कर सकते हैं और खुद फिगर आउट कर सकते हैं सब कैसे करना है, ठीक है? सेकंड, जो लोग मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं, मेरी उंगली पकड़ना चाहते हैं, जो लोग अपने पास की जर्नी 1 साल में करना चाहते हैं, यू कैन कम ऑन टू द स्ट्रक्चर्ड लर्निंग विद मी। कौन से लोग सेकंड पार्ट पे जाना चाहिए? फर्स्ट पार्ट नहीं, क्या बोलेंगे? कौन से लोग सेकंड पार्ट? आप डायरेक्ट करोगे इस पूरा जनता को। मी। देन गाइस, लेट मी क्लियर, हु इज दिस नॉट फॉर? किसके लिए ये नहीं है? तो आप बोलोगे ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो महीने का 25-30 हजार रुपए अर्न करना चाहते हैं। समझ में आया? ये उन लोगों के लिए है जो महीने का मिनिमम 1 लाख रुपीस की प्रॉफिट्स पे जाना चाहते हैं। तो जो 25-30 हजार भी सोच रहा होगा यार, अच्छा मेरा एस्पिरेशन तो इतना है तो मुझे यहाँ जाना है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक कलाकारी करनी है जो मैं अभी करना स्टार्ट करिए। इट वर्क्स वेरी वेल। एक्टिंग करनी है बहुत प्यार से। आपको बोलना है रमेश इस सही कि सर आप ये क्या कर रहे हो, आपको यही करना था तो आपने मेरे 3 घंटे क्यों बर्बाद किए? रमेश आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है आप इस मास्टर क्लास के लिए नहीं बने हो। आप अगर इस मास्टर क्लास का मुझे 10 टाइम्स भी पे करोगे तब भी मैं आपको इस सेशन के अंदर, मास्टर क्लास के अंदर नहीं लूंगा। यू आर नॉट द राइट फिट फॉर दिस मास्टर क्लास। रमेश, विद कोल्ड हार्ट आई एम सेइंग गुड बाय। रमेश गाइस,
इतनी इतनी चीजें आप बताइए, जो रमेश बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, आई हैव टू गिव हिम द एग्जिट. तो यू जस्ट ओपन द पार्टिसिपेंट, रमेश गाइस ही इज एग्जिट. नो 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 नो, व्हाई हैव आई डन इट? Why have I done it? This is a very deep psychological process into this. Very deep. I was taking up a webinar one time back. It's a lot of experience here. I took 3 people out from the session. 3 लोगों को मैंने बाहर निकाला और उस दिन मैंने 30% कन्वर्जन किया. मैंने कहा ये कैसे? ठीक है, 3 लोग को बाहर निकाला, डांट के निकाला. ये कैसे? मैंने अपना वेबिनार पे बैठ के देखा. मैंने देखा जब ये मैं कर रहा था तो मैं ऐसा दिख रहा था कि मुझे स्टूडेंट नहीं थी, मुझे क्वालिटी लोग चाहिए. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लालची नहीं हूँ, मुझे लोग नहीं चाहिए. ऐसा मुझे लग रहा था मेरे पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है. मैंने अपनी टीम को दिखाया, मैंने कहा भाई ऐसा क्यों हुआ, सेल्स क्यों आई? ही सेड सर जब आप लोगों को निकालते हो ना, इट शोज दैट आप भूखे नहीं हो लोगों के. ही इज लाइक दैट. ठीक है, भूखे नहीं, यू आर वेरी मच क्लियर ऑन योर टारगेट ऑडियंस. तो ये वेबिनार में 3 बार करता हूँ, 2 से 3 बार करता हूँ. एक बीच में करूंगा और एक जस्ट पिच के पहले करूंगा. एंड देन गाइस, अब जो होना था हो गया. जो लोग यहाँ पे हैं, let's start it guys, let's start. Okay, let's again, we are back on the track and then you start the sales brief. Is it good? So there are 2 sales brief. One is trial close, where you make them aware that at the end they are going to have something जिसको लेने के लिए कुर्सी पर से उछल पड़ेंगे, and at the end थोड़ा सा नाटक ड्रामा करना है. Is it okay? अब देखो, आप अपने एथिकल स्टैंडर्ड चेक कर लो कि आपको कहां तक जाना है. मैं ये करता हूं, चलेगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट. अब कि कई लोगों को लगा नहीं नहीं ये तो गलत है, वो आपका चॉइस मेरे लिए सही है. ठीक है, किसी का हार्मलेस लाइफ है. गॉट इट. ठीक है, युवराज को क्वेश्चन. हाँ प्लीज. हाँ, जहां पे आपका रूम सबसे ज्यादा हीट है, जहां पे लोग बोल रहे ये क्या होने लग गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. जैसे अभी आपने एक मोमेंट देखा ना इवेंट्स वाला, अब राज ने इतने अच्छे से मोमेंट बनाए, लग रहा था ना कि क्या है, उसी को बस क्या करें, मटेरियलाइज करना है. गाइस, डू यू सी दिस माइंड ब्लोइंग थिंग? बस अब फिर वहां पे कितने लोगों को लगता है सब आप एक ही सेशन में सीख जाओगे? आंसर इज नो गाइस, इट हैज टेकन मी 4 years. इट्स अ प्रोसेस. ये कोई खटका नहीं है, स्विच नहीं है, अभी बंद किया चालू किया. ठीक है, एंड प्लीज टेक इट फ्रॉम योर माइंड, बिल्कुल क्लियर. अब वो आपको ऑडियंस के हिसाब से देखना, कितना सॉफ्ट है आप, कितना डायरेक्ट हो, कितना वो चेक कर लेना. ठीक है, गुड. सो दिस इज द फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन दैट आई डिड. द सेकंड इंप्लीमेंटेशन पे चलते हैं. वैशाली, अगर खाने पीने का समय हो थोड़ा सा मुझे बता देना, हाथ खड़ा करके मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर लूंगा. ठीक है. द सेकंड इज कॉल्ड, कहां चला गया? हाँ, द सेकंड इज कॉल्ड मार्केट एक्सपेंशन. वी लर्नड इट फ्रॉम द फर्स्ट इन द फर्स्ट मास्टरमाइंड. डू यू रिमेंबर दैट? मार्केट एक्सपेंशन कितने लोगों को याद है? नहीं याद है? हाँ, मतलब मोस्टली पीपल हु रन एड्स उनको याद होगा. देखो ध्यान से. So there are 3 levels of audience in the market, which is called funnel diversification. जितने लोगों ने रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ टॉप पॉइंट्स, ध्यान से सुन लो, याद आ जाएगा. Got it? So the first is funnel diversification. What is this funnel diversification? Please understand this. There are 3 level of audiences in the market. The first one is called the low level audience. The second level is called the mid level audience. The third level is called up level market or up level audience. राज ने बहुत अच्छा बताया. पहली मार्केट कौन सी? Unaware. Who is this? Unaware. The mid market is problem aware or the solution aware, and the third market is a product aware, up level market. Shall I explain about this in depth? बताओ. ठीक है सर, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बस ब्रीफ में बता देता हूँ. अनअवेयर मार्केट कैसे है? जिनको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है. जैसे मेरी इंडस्ट्री में अगर किसी के पास कैमरा है तो उसको पता ही नहीं कि इस कैमरे से वो इनकम कर सकता है. आपके ऑडियंस में किसी को ये पता ही नहीं कि हाइक का भी कोई नीश हो सकता है, हाइक सीखी भी जा सकती है. ठीक है, उसको अवेयरनेस नहीं है. सेकंड इज प्रॉब्लम अवेयर. प्रॉब्लम है कि भाई मेरी हाइक नहीं बढ़ रही, आपका एड उनके सामने आ गया, दे आर लाइक यही तो मैं देख रहा था. सॉल्यूशन अवेयर इज लाइक इसका सॉल्यूशन तो है. मार्केट में बहुत सारे लोगों को मैंने कराते हुए देखा है, मार्केट में मैंने बहुत सारे लोगों को हाइक दिलाते हुए देखा है, लेकिन मैं चुनूं किसको ये समझ में नहीं आ रहा है. साक्षी चंद्राधर को चुनूं, सौरभ पाल को चुनूं और संजीव कपूर को चुनूं, किसको चुनूं? ठीक है, वो उसमें उसको सॉल्यूशन पता है बट इज कंफ्यूज. द फोर्थ वर्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट अवेयर. मतलब कि भाई इसका ये प्रोडक्ट है, बढ़िया प्रोडक्ट है, मुझको लेना है. जैसे हिमांशु का अपना आइस प्रोग्राम, कि आइस में जाना है. गॉट इट? सो अभी क्या किया हम लोग अपनी, ये मैं आपको बताया तो इट हैज वर्कड वेरी ब्यूटीफुली फॉर मी. सो वी वर वर्किंग ऑन टू दिस मार्केट समवेयर, मिड लेवल मार्केट. मैं आपको बताता हूँ. सो मिड लेवल मार्केट वाज दोस्त जो जिनका ऑलरेडी वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस है. आवाज आ रही पीछे तक? इज इट क्लियर? मिड लेवल मार्केट वाज दोस्त जिनका ऑलरेडी वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस है. आई थॉट, एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, मेरी टीम बैठी हुई थी, मैं ऑफिस आया, पता नहीं कहां से, अच्छे दोनों बैठे हुए मेरी टीम मेंबर्स. सो वी आर देयर. मैंने बोला यार
बहुत बहुत खींच खाच के देख लिया, अपना फनल और खींच नहीं रहा है स्केलिंग अप। तो एक काम करते हैं, मार्केट खोलते हैं फ्रीलांसर्स के लिए। किसके लिए? फ्रीलांसर्स के लिए, जो फ्रीलांसिंग वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मिड लेवल से लो लेवल पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ। इस वाली मार्केट में एक चीज बहुत अच्छे से होती है, क्या होती है? स्केलिंग। क्या होती है? बहुत अच्छे से होती है। मतलब मार्केट बड़ी हो गई ना, अनअवेयर, उसके ऐड। तो फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया अपने ऐड में कि गाइस, आर यू अ फ्रीलांसर वेडिंग फोटोग्राफर, लेकिन आपका सपना है, आपका ड्रीम है कि अपना खुद का वेडिंग फोटोग्राफी ब्रांड स्टार्ट करें, ये करे वो करे। एंड इन जस्ट फ्यू डेज वी वर एबल टू टेक आवर अकाउंट्स ऑलमोस्ट टू 40,000 रुपीज इन वन डे, और सीपीएल भी नहीं इंक्रीज हुआ। ठीक है, सीपीएल वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज गुड। देन आई वेंट टू द मास्टर क्लास करने के लिए, एंड आई वेंट ओवर देयर, एंड आई वुड लाइक टू शो यू द रिजल्ट्स ऑफ दैट, कि क्या क्या इस मार्केट में रिजल्ट आया। बिकॉज इफ आई शो यू द रिजल्ट्स, यू विल से कि अच्छा ये कर सकते हैं। यू सी द आरओएस ऑन दिस साइड, यू सी द आरओएस। पहला वेबिनार किया था 12 जून को, कितना है आरओएस? 5.61। ठीक है, सेकंड किया हमने 18 जून को 2.81। थर्ड वाले में मैं थोड़ा आलसी हो गया, बिना रिफाइन करे मैंने ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग चला दी, फिर भी कितना आ गया? 1.57। फोर्थ में मैं लाइव आया 3.73। सिक्स में मैं आया 3.40, एंड 1 जुलाई को जो किया 6.48 आरओएस। प्रॉफिट आफ्टर जीएसटी इज इन फ्रंट ऑफ यू, डू यू सी दिस? 1.25, 1.14, 2.51, 1.14 एंड 5.38 L1 है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डिड इट हैपन, ये हुआ क्यों? बहुत सिंपल सी चीज है भाई, मार्केट खोल दो। मार्केट खोली मैंने कहा आप अनअवेयर को सिखाएंगे, पीपीटी चेंज करी, उनके अकॉर्डिंग बनाई, थोड़ा बहुत मिक्स मक्स किया, हमने सामने हम लोगों ने बैठ के काम करना स्टार्ट किया, एंड इट वर्कड वेरी वेल। सो नाउ इट टेक्स मी टू द लर्निंग व्हिच हिमांशु gave us, which I'm still feel I have to work on that much. You need to test fast and you need to fail fast. Do you get this? You need to test fast and you need to fail fast. हम लोग क्या करते हैं, पकड़ लिया हमने, उसको करे जा रहे हैं, उससे निकल नहीं पाते। दिस इज ट्रू, बिकॉज समवेयर वी हैव द फियर ऑफ द अननोन। इज इट राइट? वी हैव द फियर ऑफ द अननोन, व्हाट विल हैपन, होगा कि नहीं होगा, डर लगने लगता है। दिस इज वेयर यू नीड टू बी अवेयर, यार चलो करते हैं। दिस इज वेयर यू नीड टू फाइट विद योरसेल्फ। आई हैव जस्ट वन थिंग टू आस्क यू, you have certain capabilities to do in your life, is that right? You have certain capabilities, some are unknown, some are known, is that right? You had some capabilities which were unknown to you some years back. You came into the in touch of Himanshu, you saw other people doing, and you realized I can also do it. Those were hidden capabilities. You were able to do that, you were able to scale, is that right? Sunny ने भी he was able to purchase his house. आज से 3 साल पहले he might not know कि वो घर भी खरीदेगा, right? Similarly within you, my question is very simple. If you have the capabilities, and if you have certain capabilities and you know what to do, but if you are not doing that, you are not realizing your full potential. You're not, is it right? If you do not have some capabilities and you are not able to do that, that is okay. नहीं है ही नहीं भाई, नहीं कर पाओगे। But if you have some capabilities which you can do, and if you are not doing that, do you think you are a disaster? Do you think you are a disaster? You are a living disaster on this planet. Yes or no? Yes or no? Living disaster. So my thing is very simple, guys. अगर लगता है कुछ करने का मन है, एनर्जी आ रही है, उसको फट से करना स्टार्ट, ठीक है? और अभी देर वॉज फ्यू डेज बैक मैं हिमांशु बोल रहा था, हिमांशु मैं 3 दिन में 3 फनल लॉन्च किया हूँ, ठीक है? रोज एक, हम लोग रोज कर रहे थे, रोज बना रहे थे, और फटाफट एक कुछ हम शैलेंद्र हम बैठ के हमने फटाफट कोचिंग का कुछ लॉन्च किया, फेल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल अल्टरली फेल। वेबिनार में बैठा, चिल्ला रहा हूँ, खूब चिल्ला रहा हूँ, यू नीड टू बाय दिस गाइस, यू नीड टू डू इट, यू नीड टू डू इट। लोग कमेंट भी नहीं किए, ठीक है? मैं ऐसी जनता से मिला, मैं उनको बोला गाइस टाइप इनसाइड द चैट बॉक्स, दिस इज अमेजिंग। कमेंट ही नहीं आ रहा, मुझे शक होने लग गया, लोग बैठे भी हैं, कोई बॉट चलाए। मैं अंदर से मुझे रोना आने लगा, अंदर से आई वाज क्राइंग। मुझे लग रहा है 3 घंटे में कैसे खत्म करूंगा, मैंने इतना सब कुछ तैयार किया है, ये तो कमेंट ही नहीं कर रहे। मैंने फिर भी कुर्ता पजामा पहन के मैंने कहा चलो यार करते हैं बोल ले, प्रैक्टिस खुलेगी, बोलते हैं। 3 घंटा बोला, 0 सेल, ठीक है? 0 सेल, फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बदम किया, फिर दूसरा स्टार्ट किया। बट दिस बिकम्स द हैबिट, क्या चलो ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। So this idea which I'm showing you, it would not have happened if I would not have tested. Is it good? समझ में आ गया इसका लर्निंग? Yes. टेस्ट फास्ट टू फेल फास्ट, या फेल फास्ट टू टेस्ट फास्ट, जो भी देखना बना लो, ठीक है? अब्दुल्ला,
ये आपने जो चेंज करी थी उस आपने बोला कि आप अभी अनअवेयर मार्केट में चले गए। थोड़ी सी अवेयर भी थी, थोड़ी सी अनअवेयर भी थी, बीच की थी। हाँ, वो वाली टेस्टिंग आप बोल रहे हो वो आपकी सही करी, आप वो काम करी। हाँ, जैसे आप में बहुत सारे टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, जैसे कभी हेल्थ का वैसा, तो बहुत सारी चीज इस बार तुक्का लग गया, हिट हो गया, बट टेस्टिंग इज द थिंग कि चलो ये भी कर। अच्छा ओके। अच्छा अब हाँ, व्हाट आई वांटेड टू नो वाज अनअवेयर मार्केट आपकी चली। हाँ चलिए ना। अब ये मुझे नहीं पता डायमंड में मुझे क्या रिजल्ट देगी, मुझे इसकी टेंशन है थोड़ी, समझ रहे हो आप। अब ये मार्केट में L3 में कितनी कन्वर्ट होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपनी सीडिंग एंड ऑल अब चेंज करूंगा। डू यू गेट दिस? टोटल ऑडियंस पिच के टाइम मैं पिच के टाइम से लेता हूँ, जब लोग मतलब सेल्स ब्रीच होने वाला है तब से। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, तो अगर आप माइक दे दो। ठीक है, नाउ माय फेसबुक एड्स डैशबोर्ड। अब इसको समझाते हैं गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। आई विल शो यू 2 अकाउंट्स। हाउ मेनी अकाउंट्स? 2 अकाउंट्स। ठीक है, इन द फर्स्ट मास्टरमाइंड हिमांशु टोल्ड अस कि भाई यू नीड टू, आपको याद होगा उसने एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक कार बनाते हैं हम लोग, याद होगा तो याद होगा आपको एग्जांपल। व्हाट इज इट इन द फर्स्ट मास्टरमाइंड? ही सेड देखो एक कार है, एक कार को अगर अच्छी कार बनानी है, व्हाट नीड्स टू बी डन? क्या बोला था हिमांशु ने? उसने बोला था उसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील है, इंजन है, डोर है, पता नहीं क्या क्या होता है, सब अलग अलग बन के आता है, सब टू द बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी बनता है और वो कार ही बढ़िया चलने लग जाती है। अगर कार में कुछ चैलेंज आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप देखोगे कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, उसको जाके फिक्स करोगे, द कार विल स्टार्ट टू मूव ऑन। इज दैट राइट? यस और नो? नो गाइस, आई हैड अ फनल बिफोर दिस जो हम लोग चला रहे थे, और वो फनल हमारा, सो व्हेन वी रन अप अ फनल उसके डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं। पहला इज कि उस एड पे कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में? CTR बोलते हैं। वो किसी का 0.86%, किसी का 1%। फिर उसके बाद आता है हमारा लैंडिंग पेज विजिट परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं OBV टू LPV, कि OBC टू LPV, आउटबाउंड क्लिक्स टू लैंडिंग पेज विजिट। इतना एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग अभी हम सबको होना चाहिए, मतलब कितने लोगों ने क्लिक किया हमारे पेज पे और कितने लोग गए। अब हमारे लैंडिंग पेज का कन्वर्जन जा रहा था, लैंडिंग पेज का जो विजिट परसेंटेज जा रहा था, वो जा रहा था अराउंड 60%। कितना? 60%। ठीक है, मतलब 100 में से 40 लोग वहां पे गए ही नहीं मेरे पेज पे। ठीक है, और अगर आपका जो फनल है वो 1.5 लाख के स्केल पे चल रहा है, तो आप सोचो कितना पैसा आप लूज करोगे। मतलब मैं आपको अगर दिखाऊं 1.5 लाख के स्केल पे चल रहा है और आपके 10,000 क्लिक्स है, तो 10,000 में से 4,000 लोग जाएंगे ही नहीं आपके पेज पे। समझ में आ रही है बात? ये बिकॉज ऑफ समथिंग ABC इश्यूज। सो व्हाट वी डिड, आई शो यू हाउ डज इट लुक लाइक. So I was able to find something which I'll share with you all, and it is working very well. So our landing page conversions, landing page visit percentage from 60% was able to grow to 75 to 80%. कितना? 75 to 80%. सब लगा के देखा, सब कुछ किया, बट चल नहीं रहा था। आज का कितना आ रहा है? आज का 70% आ रहा है। येस्टरडे का अभी दिखा दो, येस्टरडे का कितना था? जूम करोगे? हाँ कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो। So yesterday landing page visit percent was 73%. Are you able to see this? और जूम करूं? ठीक है, ये हिमांशु ने हमको फर्स्ट मास्टरमाइंड में he told us, right? ये कहां चला गया? ये देखो, दिख रहा है? Are you able to see this? Landing page visit percentage. Are you able to see this? Now the challenge is, I might be wrong onto this. I do not know. The people who use third party landing page builders, ठीक है, different names, ClickFunnels, Swipe Pages, जो भी है, आई एम नॉट सेइंग कि उनका कितना काम कर रहा है कितना नहीं, जस्ट गो एंड सिंपली चेक कि कितना है नंबर। ठीक है, साक्षी का एक टाइम पे नंबर 80%, 79% वी हैव सीन। ठीक है, अभी राउंड ऑफ इट इज ड्रॉपिंग बिकॉज ऑफ सेम थिंग, शायद हमारा लीड पेजेस चलता है अपना। ठीक है, अब नाउ द चैलेंज विद द लैंडिंग पेज बिल्डर्स इज दिस शेयर द सर्वर स्पेस। इज इट राइट? दे शेयर द सर्वर स्पेस। मतलब अगर उन्होंने एक ऑफर निकाला कि भाई आज हम लोग ये लैंडिंग पेज बिल्डर 50% ब्लैक फ्राइडे पे ऑफ देंगे, तो आपको लगेगा वाह क्या बढ़िया डील मिल गई, आप खुश हो जाते हैं। बट यू डू नॉट नो ऑन द बैक एंड वो लैंडिंग पेज कितनी देर में खुला, उसमें पैसे बचाए जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? मतलब अगर वो लैंडिंग पेज 1 सेकंड में ओपन होता था और 100 लोग उसको शेयर करते थे उस सर्वर स्पेस को, और अगर 200 लोगों ने उसको शेयर कर दिया, 200 लोगों पे शेयर हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर वो डीले होगा, लेकिन उनका कॉस्ट उसी सर्वर स्पेस में सेव हो जाएगा, लैंडिंग पेज बिल्डर का कॉस्ट सेव हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है?
मेरा लेकिन वर्डप्रेस भी चल रहा है यार, लेकिन आप अभी बता रहा हूँ WordPress तरीका बता रहा हूँ। हाँ बता रहा हूँ, ये अभी रिसेंटली निकाला है कुछ दिन पहले। अब आप इसको करने का तरीका क्या है, सुनते रहना। ना इफ यू आर हैविंग अ वर्डप्रेस अकाउंट, जो मैंने टेस्ट किया है 2 अकाउंट पे, ठीक है। एक अकाउंट अपना 80% दे रहा है, विच इज कोचिंग के लिए हमने स्टार्ट किया था, और एक ये स्टार्ट किया 76%। द थिंग इज वेरी सिंपल, जिसके साथ भी आप काम करते हो, जो भी आपका पेजेस वगैरह बनाता है, यू जस्ट टेल देम, देखो भाई एक नया वो लो, होस्टिंग लो, होस्टिंगर से क्लाउड होस्टिंग ले लेना, अच्छा सा 12-13 हजार रुपए का साल का आएगा, उससे अच्छा हो तो वो ले लेना। यू टेक वन वर्डप्रेस अकाउंट, अटैच कर दो। कितने पेजेस बनाओगे आप? ओनली 3। उस पेज के अंदर कितने? ओनली 3। कौन कौन से पेज? 1 लैंडिंग पेज, व्यू का लैंडिंग पेज पूरा, दूसरा आपका थैंक यू पेज ओटीओ जिस पे लगा होगा, और तीसरा परचेज का पेज, परचेज फाइनल L1 परचेज का पेज। कितने? जो लोग पे करके L1 पे जाएंगे परचेज के, हम लोग 3 पेज बनाते हैं बस, कोई पिक्सल नहीं डालते, कुछ नहीं डालते, एंड वी बिल्ड अप एंड इट गिव्स अस 76%। द मोर प्लगइन्स यू पुट इट अप, द मोर इट गेट्स स्लो। डू यू गेट दिस? मतलब पिक्सल के बगैर ट्रैक कैसे कर रहे हो? सॉरी, पिक्सल के बगैर आप ट्रैक कैसे कर? पिक्सल मतलब एक पिक्सल लगेगा ना अपना, एक ही हाँ एक पिक्सल लगेगा, बहुत सारे नहीं लगाने। एक बस के लिए एक प्लगइन है HFCM, हेडर फूटर कोड मैनेजर, एक प्लगइन आता है, और अगर वो भी यूज ना करो तो बहुत बढ़िया। बॉडी में जाके जिसके साथ भी आप काम करते हो, बोलो मुझे अपने वर्डप्रेस अकाउंट पे कोई भी प्लगइन नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई बहुत अर्जेंट है, जैसे कुछ कैशे वगैरह क्लियर करने का है, WP रॉकेट वगैरह है, कुछ ऐसा है जिससे आपकी स्पीड फास्ट होती है, तो लगा लो, वरना मेक एज मच एज लो प्लगइन्स एज पॉसिबल। और अगर फिर भी लैंडिंग पेज इंप्रूव नहीं हो रहा है, जो मैंने अभी अपनी टीम को बोला है कि पूरे वर्डप्रेस अकाउंट को सफाई कर दो, पूरा साफ कर दो, दोबारा से इंस्टॉल करो, 3 पेजेस बनाओ और स्टार्ट करो। डू यू गेट दिस? और ये इसकी वजह से हमारा CPL जो था वो लगभग कितना 350-400 का CPL जाता था, सिर्फ लैंडिंग पेज विजिट कम होने की वजह से। अभी कितना हो गया वो? दैट इज 76%। अभी 250 to 300, 220 भी रहता है। डू यू गेट दिस? मतलब डिसमेंटल करना है अपने पूरे स्टेप्स को, कि भाई क्या चीज है जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। कुछ चीजें होंगी जो आपसे कंट्रोल नहीं होंगी, जैसे मुझसे CTR आज तक कंट्रोल नहीं हुआ अपना, CTR आज तक मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ है। मैं बहुत अच्छे एड्स बना के देख ली, क्लिक्स उतने ही होते हैं जितने होने हैं। गॉट इट? क्लियर? क्लियर? सो व्हाट वी लर्न एंड हाउ टू इंप्लीमेंट दैट। नाउ गाइस, थोड़ा मजेदारी वाली चीजें लाते हैं, बढ़िया वाली। अब मजेदारी वाली चीजें क्या है? हाँ ये सुनो, बढ़िया है। इन द लास्ट मास्टरमाइंड व्हिच वी वर देयर, आई थिंक जिसमें हिमांशु ने, कौन सा मास्टरमाइंड था जिसमें हिमांशु ने वो बनाया था चार्ट और बोला था एड्स बनाने के इतने तरीके हैं, ऑडियो वीडियो ये सब, कौन सा वाला था वो? मुंबई वाला था। हाँ मुंबई वाला मास्टरमाइंड था। तो आई वाज एट द होम, आई वाज जस्ट रिवाइजिंग द नोट्स एंड एवरीथिंग, and I was able to see a tool I was able to see, and before making any judgments what I'm going to share with you, you please go and experiment on it, ठीक है। जजमेंट मत बनाना, जो अभी मैं शेयर करूंगा बोलना, ये बस सोचना कि चलेगा कि नहीं चलेगा। कई लोग सोचने लग जाते हैं यार मेरे में, जैसे मुझे अभी राज बैठा था, तो राज आया तो मैं ऐसा सोचने लगा यार मेरे फोटोग्राफर्स में तो कोई होगा नहीं लिंक्डइन से। मैं गया सर्च किया, पता है कितने लोग थे? 19,60,000 लोग, ठीक है। This is where we create self beliefs without being aware that we are having some self beliefs which are stopping us to move forward without actually checking the reality. ठीक है? So I'm going to share with you something. Please do not make the judgments. Go and try it. If it works, good. If not, then also good. कोई नई चीज ट्राई करी, प्राउड हो जाओगे, खुश हो जाओगे, चलो मैंने ट्राई करके आया, चलेगा? ठीक है? So guys, this is a tool called as Sketch Wow. क्या है? टूल का नाम क्या है? Sketch Wow. मैंने कई बार ग्रुप में डाला है, बहुत बार डाला। तो जब भी मेरी टीम मुझे बोलती है सर एड्स बना के दे दो, और मेरा फेस अच्छा नहीं लग रहा होता, मैं भूत लग रहा होता हूँ, या बाल बिखरे पड़े हैं, कहीं ऐसी बेड के अंदर घुसा हुआ हूँ, काम करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आवाज में बनावट में डाल सकता हूँ, तो ये काम आता है। चेहरा नहीं दिखाना, बस सोच के देखो, बस आपको बोलना है, तो बोलने में तो आसानी है। कितना अच्छा फील होगा आपको कि चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा बना के दे दो, और कुछ ऐसा बना के दे दो, CPL आपका 100 रुपए आ रहा है, सोच के देखो, लगेगा आपको। So this works very well in the education department, और जो लोग कुछ सिखाते हैं, ठीक है, और ये सब जगह काम करता है। So let me share with you, I'll make an advertisement in front of you. So this is a tool called Sketch Wow. बस टूल है, मेरे पास आया। इस कंपनी ने मुझको 4 अपसेल मारे। कितने मारे? 4 अपसेल मारे, और चारों खरीदे मैंने, चारों ले लिए मैंने इसके सारे लैंडिंग पेज के स्क्रीनशॉट लेके रख लिए। मैंने कहा मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही कॉपी मारूंगा,
ठीक है, ये 4 बार एक पे एक किया, फिर $39 का बेचा, फिर एक और बेचा $89 का। इसने पूरा सॉफ्टवेयर खरीदवा दिया मुझको कुछ सेकंड में। और मैं इतना लालची, मुझे लग रहा है ये भी ले लेता हूँ यार, ये भी सही लग रहा है यार, ये भी बढ़िया लग रहा है, ले लो इसको भी, बढ़िया काम ही आएगा। सारे लॉजिकल रीजन दे रहा हूँ उस वक्त मैं अपने आप को बैठ के, काम आएगा कभी ना कभी, टीम तो काम करेगी इस पे, ले लो ले लो। तो 22,000 रुपए इस पे, इस टूल पे लिए, गॉट इट टोटली वर्थ टेकिंग इट, वर्थ, ठीक है, वर्थ। अब सुनाता हूं आपको, लेट्स सुनते रहना। दिस इज अ टूल, यहाँ पे जाओगे, इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? टेम्पलेट्स बने होते हैं इस तरीके से, वो लग जाएगा ऑक्स, ठीक है, ऑक्स केबल। सो लेट मी जस्ट शेयर विद यू। सो टेम्पलेट्स बने हुए हैं, ठीक है। अब जैसे साक्षी का कोई नीश है मान लो, ठीक है, अब साक्षी ने इसको ओपन किया, अब साक्षी ने इसको देखा बढ़िया लग रहा है, अब आई डोंट नो, एंड आई टेल यू गाइस वन थिंग, इसको कैसे बनाना है, आपने फोन लेना है, फोन लोगे और बिल्कुल कनेक्ट करोगे, ऑडियो, माइक भी नहीं लगाना है, क्या माइक भी नहीं लगाना, क्योंकि आपके जो टूल्स है एआई टूल्स वो इतने अच्छे से सफाई करते हैं नॉइस की, आपको माइक की भी जरूरत नहीं है। तो अब मैं इतना आलस हो गया, रोड का माइक बराबर कम है, फिर भी मैं उसको नहीं लगाता हूँ क्योंकि आवाज बढ़िया आती है। कैप्शन टूल से माइक की आवाज चली जाएगी। अब क्या करेंगे, जैसे ये एक है, तो साक्षी ने ऐसे ओपन किया आइडिया, तो साक्षी लिखेगी, साक्षी ऐसे वीडियो बनाएगी इस पे, चिल बी लाइक दिस। अब पता नहीं मैं कैसा कर पाऊंगा, इम्प्रॉम्प्टू कर रहा हूँ, चलो देखते हैं। ऐसे ऑन किया या ऑन किया, ऐसे रहेगा साक्षी का कैमरा। साक्षी विल से, every working professional who is looking for a job has all these ideas in their mind when it comes to finding up a job. First, second, third, fourth. Let me tell you guys, all of these used to work before 3 years ago, 4 years ago, but it is not the right strategy right now. There is something very much more powerful which has been working for a lot of working professionals, and it is called career branding. And if you want to learn about this more, this career branding will help you to grow in this, the benefit bana hai. And if you want to learn about this more, you just need to click on the sign up button and you will come onto this page, and this page will look like something this to you, okay, look like this to you, and this in this masterclass I'm going to teach you all this. You just need to click on the book click here to book my seat, and you will just and come inside the masterclass. This is it. अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके 5-6 एड्स मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एंड यू विल जस्ट सी। अभी आपको थोड़ा सा, अब यहाँ पे मैंने ऐड रखे हैं कि नहीं रखे हैं मुझे देखने पड़ेंगे। हमारे नाचने गाने की वीडियोस है आश्रम की, इसको नहीं देखेंगे आप लोग प्लीज। कहाँ है भाई? हाँ देखो, ये है, दिखाऊं Reading for those capable get free बहुत important है, तो टू ग्रेट रहेगा। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या आप वेट कर रहे हो, तो काम आता है वहाँ, गलती हो गई, का जो ज्यादा से ज्यादा जब काम आता है और उस वो चीज है एटलीस्ट। लेकिन अगर आपको इसके बाद अगर ईयर एंड बोर्ड चाहिए तो वो तो ग्रेट टू स्टे, तो जहाँ पे आपको सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे लीड जनरेशन की, मतलब आपको एक ऐसा सिस्टम डालना पड़ेगा जो परमिशन पे ऑटोमेटिकली आपके पास बहुत सारे इंक्वायरीज आपके पास लाता है। लेकिन अगर किस सिस्टम नहीं होगा तो आप यही पे फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, और यही रीजन है पिछले कुछ सालों से आपका बिजनेस यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, यही करोगे। और यार स्ट्रगल कर रहे हैं अपने वही फोटोग्राफी बिजनेस में, और आप गुड से ग्रेड पे नहीं जा पा रहे, तो दोस्तों मैं एक मास्टर क्लास पढ़ने जा रहा हूँ कंप्लायंस मास्टर। गलती हो गई। आपको नीचे नहीं पे सारे बटन दिखेगा, और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप उस पेज पर आ जाएगा। अभी लिखा हुआ था, मैं डिलीट करूंगा उसको, मैं शायद इरेज करूंगा, पता नहीं क्या करूंगा, रुको देखता हूँ। ये एडिट, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे आपको नीचे कहीं पे सारा बटन दिखेगा, और जब आप उस पर क्लिक करोगे, अरे रुको आगे लेकर आता, सफाई चल रही, सफाई ये सफाई भी थोड़ी सी मैंने साफ किया, लैपटॉप पर सब लिखने लगता हूँ मैं, ठीक है, साफ हो गया। और जब उससे क्लिक करें और यहाँ आ जाएगी, और ये मास्टर क्लास का पेज, इस मास्टर क्लास के got the idea, do you get this? ठीक है, इसी तरीके से ये भी है। में इस सिस्टम लाइब्रेरी फोटोग्राफी बिजनेस की वो बनने के लिए मेरा वेरी थोड़ा मशीन बिजनेस कर लिया। स्मॉल वेरी कैन मेक अ बिग डिफरेंस। ठीक है, आपको बस उठाना है, बोलना आज, एंड फिर पहले मैंने आपको बोल दिया, जज नहीं करेगा कोई भी, चलेगा कि नहीं करेगा, चला के देखेंगे। अब जब इस टूल में जाओगे, व्हेन यू विल गो इनसाइड दिस टूल, यू विल सी अ लॉट ऑफ फ्रेमवर्क। अब किसी को भी मैं ओपन करूंगा ना आपके सामने, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स से, और बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कि लोगों को ऐड में समझ में ना आए। लेट्स से मैंने अभी वाला चलाया, बड़ा मस्त चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अपने वाला ऐड, ठीक है, ये मैंने बोला। अब इसको कैसे मैंने बोला,
फ्रीलांसर वेडिंग फोटोग्राफर्स, उनको जब अपने बिजनेस में क्लाइंट्स लेकर आने की बात आती है तो वो सोचते हैं कि मैं व्हाट्सएप से काम ला सकता हूँ, मैं फेसबुक से काम ला सकता हूँ, मैं बूस्ट पोस्ट कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। 5 आइडियाज जो कि रॉन्ग है, वो जो सोचते हैं, ठीक है। एंड गाइस लेट मी टेल यू, इट डज नॉट वर्क। ये काम करता था आज से कुछ साल पहले, दिस वर्क, एंड देन कहानी बना दो। ललित सर कहानी बनाने में आसानी, केकड़े से कहानी बना देते हैं, तो फिर भी पूरा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है कि नहीं? यू गेट दिस? यस और नो? सो गाइस दिस यू नीड टू गो बाय इट, टेक इट। जब भी आपको लगे आलस आ रहा है, फोन ऑन करना, कुछ नहीं लगाना, ऐसे बैठना है बस। रात के 10 बजे मुझे टीम बोलती है सर 10 ऐड दे दो, मैं 10 ऐड आधे घंटे में बना के दे देता हूँ। ये भी मैं बहुत ज्यादा टाइम बता रहा हूँ, गॉट इट? और सब चलते हैं। दूसरा जो मैंने आइडिया लिया, सुनते रहना प्लीज अंडरस्टैंड, ये काम बहुत अच्छे से करेगा। एवरी कोच जो भी यार इस समय पे कहां चला गया, आ गया, ठीक है। अब देखते रहना गाइस, लॉट ऑफ यू पीपल डू नॉट डू दिस, स्टार्ट डूइंग दिस, प्लीज अंडरस्टैंड। ये आपकी वेबिनार की स्लाइड्स हैं, जो लोग वेबिनार करते हैं। इन ए वेबिनार यू हैव अ लॉट ऑफ स्लाइड्स एंड सम स्लाइड्स आर वेरी वेरी पावरफुल वेयर द ऑडियंस गो बोंकर्स, इज इट? होता है बिल्कुल पगलाती कि यार ये क्या बोल दिया। क्या करना है, अपने पीपीटी में जाना है। कभी भी आपको लगे कि ऐड में क्या करना है, पीपीटी में जाइए और देखिए कि कौन सी स्लाइड मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है, कौन सी स्लाइड मेरी बहुत अच्छी है। मैंने एक ऐड बनाया, 76 रुपीज का सीपीएल लेकर आया। जब मुझे कितना लग रहा था, 76 रुपीज का सीपीएल फॉर 51 रुपीज प्राइस टिकट। ऐड था बस ये, क्या था ये, हमने अमन मस्किन और हम कहाँ बैठे हुए थे, हम लोग आश्रम में बैठे हुए थे, तो अमन मस्किन ने आइडिया दिया था। मैंने क्या दिया था, अमन मस्किन वहां बैठा, अमन से बोला कि अब्दुल्ला भाई आपका ये स्लाइड अच्छा लग रहा है यार, इसको कुछ बना लो, एड बना लो। मैंने बस फोन ऑन किया और मैंने स्लाइड, मैंने गाइस अगर आप सामने प्रेजेंटेशन ऑन है, ये लास्ट वाले मास्टरमाइंड में हिमांशु ने बोला है पीपीटी एड्स, याद है आपको? पीपीटी का कॉलम बोला था, पीपीटी एड्स, याद है? सामने से खोला, लर्न हाउ। गाइस अगर आप ये सीखना चाहते हैं, सबसे पहले अगर आप फ्रीलांसर वेडिंग फोटोग्राफर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे अपना खुद का वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करके साल के इतने लाइक्स की इनकम पे जाए, विदाउट एनी मार्केटिंग नॉलेज, विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज, विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी कैमरा, जीरो एक्सपीरियंस, नो एजुकेशन, नो ऑफिस एंड विदाउट एनी टीम। तो गाइस मैं आप लोगों के लिए एक मास्टर क्लास करने जा रहा हूँ। दिस इज 76 रुपीज सीपीएम हमारा, और 50 रुपए का, मतलब एक आइडिया ने कितना क्रॉस सेव किया आपका। So similarly, what I did, I went to all my PPT. मैं एक दिन बैठा, मैंने कहा आज तो पूरी पीपीटी में से ऐड बनाऊंगा मैं, तो पूरा बैठने लग गया, जहां जो मिला उल्टा सीधा स्लाइड बना दिया। अब मजेदारी की बात पता है क्या है, जब ये ऑडियंस ये ऐड देख के आपके वेबिनार में आती है तो उनको फील होता है ये तो ट्रेलर में देखा था, याद आ रहा है, कनेक्ट हो जाता है। फिल्म कैसे चलती है, आप एक फिल्म का देखते हो, उसमें ट्रेलर कैसे दिखाते, धुआंधार ट्रेलर दिखाते हैं, और जब फिल्म में लगता है अरे इतने आराम से ट्रेलर निकल गया, फिल्म में तो बड़ा उसका वो बिल्कुल म्यूजिक डाल रखा था, बट स्टिल वी फील द कनेक्टिबिलिटी, ठीक है। तो दिस एक्चुअली स्ट्रेंथन योर मैसेज टू मार्केट। डू यू गेट दिस? कभी कभी क्या होता है, ऐड कुछ और बनाते हो, पीपीटी में उसकी हवा भी नहीं होती है, वो ऐसा, उनके सेल्स आते नहीं। सर लोग आगे बोलते सर हम सोच के कुछ और आए थे लेकिन हमें वो नहीं मिला जो हम चाह रहे थे। यू विल सी दैट दिस हैपेंस बिकॉज स्लाइड्स आपकी या मैसेज आपका रेजोनेट नहीं कर रहा है। तो इफ यू मेक द पीपीटी एड्स इट इज मोर गुड। गॉट इट? ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट पार्ट, चाहे थोड़ी डिले हो जाए तो चलेगा, भागेगा, ठीक है, ऑल राइट। सो गाइज नाउ वी विल मूव टू फोर्थ पार्ट। अच्छा ये हो गया, एड्स एंगल हो गया। फिफ्थ कौन सा है? ओहो, नंबर ट्रेनिंग। ऑल राइट, ओके, नंबर, बस फीट से जा रहा हूं क्या? सही है ना, समझ? ठीक है। सो गाइज दिस इज कॉल्ड अ नंबर ट्रेनिंग शीट एंड दिस आई लर्न लास्ट बारी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। ये खुद बनाओ, मैं बोलूंगा खुद बनाओ, इसको अपने हाथों से बनाओगे तो ज्यादा फील आएगा। I'll tell you why. Still, this is handled by me in my team. ठीक है, I do the predictions with this sheet. Would you like to see something magical? ये दिखाया था लास्ट टाइम मैंने आपको, कितने लोगों ने नहीं देखा है ये? कितने लोग फिर से देखना चाहेंगे? अच्छा ठीक है, done. So guys, this sheet, what this sheet is? This sheet is very simple. हाँ देखते रहना, मैच में नहीं बोल। I'll just do this thing. इसको थोड़ा जूम ही कर देते हैं। चलो ऐसे देखते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? एड स्पेंड, ठीक है, देखते रहना। ये शीट क्या है, इस चीज को समझेंगे पहले। द चैलेंज इन लाइफ इज दिस दैट मैं आई वाज सिटिंग विद हिमांशु इन द फर्स्ट कॉल। मैंने बोला हिमांशु यार मैं ना कॉम्प्लेसेंट हो गया हूँ, मतलब मुझे अपना मन नहीं करता काम वाम करने का एंड ऑल। ही सेड कम, मतलब समटाइम्स बैक।
एंड ही वाज सिटिंग विद मी. तो ही सेड टू मी कि आप कॉम्प्लेसेंट नहीं हुए हो, आपको क्लैरिटी नहीं है कि अब क्या करना है. क्या आप कॉम्प्लेसेंट नहीं हो, आपको क्लैरिटी नहीं है क्या करना है. कह रहा अभी मैं आपके सामने 200 करोड़ का प्लान खोल के रख दूंगा और बोलूंगा जाके बिल्कुल ऐसे 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 ही करना है, तो आप करने लग जाओगे. तो उस समय मुझे इतनी समझ में नहीं आई बात, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने कहा ठीक है होगी बात, लेकिन एक आई वाज सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट विद हिमांशु. उसने मुझे दिल पे चोट मारी उस दिन, मतलब मुझे रोना आ गया. कह रहा कितना एड स्पेंड है. मैंने कहा हिमांशु अभी 20-25 चल रहा है. कह रहा जब तक गुड्डे भी हो जाओगे ना तब तक यही कर, तब तक भी यही बोलते रहोगे कि 20,000-25,000 एड स्पेंड है. वो प्यार से उसने मुझे बोला, कंट्रोल तरीके से बोला. उसको पता है कि अब्दुल्ला को कितना बोलना है, इतने में समझ जाएगा, ज्यादा वाट नहीं लगानी है. ठीक है. तो उसने बोला कि जब तक गुड्डे भी हो जाओगे तब तक आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप गलत लोगों के साथ बैठते हो. और मैं बिल्कुल ऐसा देख रहा हूँ. ठीक है. बहुत देर तक ऐसी, फिर मैं सोचता रहा, कार में बैठे, मेरी आवाज बंद. उस दिन रात को गया, नेचुरली अंदर से ये आया कि भाई इसको अब बनाता हूं मैं शीट पे. ठीक है. एंड ही सेड टू मी कि आपको पता ही नहीं कि आप कितना पैसा डालोगे तो कितना निकलेगा, क्या करोगे आपको आइडिया नहीं है. एंड आई मेड दिस शीट एंड आई डॉक्यूमेंटेड द एंटायर कस्टमर जर्नी. ठीक है. वुड यू लाइक टू सी दिस कि क्या है? देखो क्या है, बहुत सिंपल सी स्पीड से समझाता हूं. आपने इतना एड स्पेंड किया, ये वाला आपका सीपीएल, मतलब आप जो रेड, जो लाइट पिंक है, जो लाइट पिंक वाली शीट है वो आप मैनुअली एंटर करोगे. क्या करोगे? मैनुअली एंटर करोगे. और जो बाकी व्हाइट एंड ऑल है वो सब खुद कैलकुलेट होता रहेगा. तो मान लीजिए आपका पर डे का स्पेंड 45,000 का है, मान लीजिए. ठीक है. आई पुट 45,000 ओवर हियर एंड लेट्स से मेरा सीपीएल, कस्टमर कॉस्ट पर लीड जो है, मान लीजिए 250 रुपीज का आता है. गॉट इट? जो पिंक वाले हैं वो कंट्रोलेबल्स हैं. क्या है? कंट्रोलेबल्स का मतलब क्या? जिसको आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो. इज इट राइट? जैसे अगर शो अप नहीं आ रहा तो कंट्रोल किया जा सकता है नर्चर करके. शो अप नहीं आ रहा है तो एक हफ्ते वेबिनार करने के बजाय हर 2-3 दिन में आप वेबिनार कर सकते हो, लोगों को याद रहता है. गॉट इट? ठीक है. सीपीएल आप कंट्रोल कर सकते हो बेटर एड से. सो पिंक वाला क्या है? कंट्रोलेबल्स है. कुछ कुछ इसमें नॉन कंट्रोलेबल्स है, उसमें भी आएंगे. सो माई सीपीएल इज कंट्रोलेबल. लेट्स से जब सीपीएल आया, जब हमारा सीपीएल आया लेट्स से 250 रुपीज का. देखो थोड़ा मैथमेटिकल है, आपके माइंड पे लोड आएगा. एंड दिस इज वेयर द एक्चुअल ग्रोथ इज. इन द लास्ट मास्टरमाइंड हिमांशु सेड द रियल ग्रोथ लाइज ऑन द थिंग्स दैट यू आर अवॉइडिंग. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट? अभी आप लोगों को लग रहा होगा यार ये तो छोड़ो, मैं तो अपने टीम वाले को दे दूंगा. दे देना टीम वाले को, मैं मना नहीं कर रहा हूं. समझ लीजिए अभी. ठीक है. समझ लो अभी कि कैसे काम करता है. गॉट इट? जिनको भी नंबर से लोड आता है, सो 70, लेट्स से मेरा शो अप आता है 60% का, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 60% जाके लेट मी राइट 60%. ठीक है. मैं आ गया, मैं शीट आपको अभी देता रहूंगा, बात करता रहूंगा, देता रहूंगा. 60% मेरा शो अप आ गया. मेरा कंट्रोल लेवल, क्या मेरी पिचिंग मेरे कंट्रोल में है? क्या मैं अपनी ऑडियंस की पिच को ड्रॉप और रिटेंशन कुछ हद तक मेरे हाथ में है? यस और नो? कैन वी कंट्रोल दैट? तो मान लीजिए ड्रॉप टिल पिच, मैंने बोला 30% इंडस्ट्री एवरेज है, मैंने बोला 30% है. अगर मैंने 30% का ड्रॉप किया, मेरा शो परसेंटेज 60% आया, और मान लीजिए मैं 25% पे कन्वर्ट करता हूं. अब पहले 20% था मिनिमम, अभी 30% बेंचमार्क है, 25 से 30% मिनिमम आना चाहिए. गॉट इट? तो मैंने लिया 25% में कन्वर्ट करूंगा. ठीक है. एंड इफ आई कन्वर्ट एट, इसको हटाओ, ये मेरी मैनुअल शीट है, एंट्री करो. ठीक है. इफ आई कन्वर्ट एट लेट्स से 25%, ठीक है, B2 बाय हाफ, तो मेरा जो भी आएगा पूरा ये कैलकुलेट होगा, और मेरा बजाज का सक्सेस रेट जो भी निकल के आएगा, तो पूरे फनल का ROS नीचे कैलकुलेट होके आ जाएगा विद प्रॉफिट्स. डू यू सी दिस? डू यू सी दिस? आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू अकॉर्डिंग टू योर नीश. अब मैं आपको आपकी शीट पे लेके चलता हूं, क्योंकि मेरे ऑडियंस को मैं बजाज का फाइनेंस का ऑप्शन देता हूं, तो आप में फिट नहीं होगा, तो मैंने आप लोगों के लिए अलग से शीट बना दी है, जो लोग सीधा मास्टर क्लास में सेल करते हैं. अब देखते रहना. सो एड स्पेंड कितना है जी? पर डे एड स्पेंड लेट्स से 50,000 का है. ठीक है. मान लीजिए 40,000 का है. ठीक है. ठीक है. 40,000 यहाँ कितना होगा? ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया 12 lakhs हो गया. फॉर्मूला लगा हुआ है इंटू 30 बाई दिस. ठीक है. उसके नीचे सीपीएल हमारा कंट्रोल में है. सीपीएल ब्लेड से आप फ्री वेबिनार करते हो, आपका सीपीएल आ रहा है 50 रुपए का. ठीक है. तो आपको पूरे महीने में लीड्स कितनी आई? 24,000. ये कैलकुलेट होकर आ गया. क्या टोटल शो अप आपके हाथ में है? कुछ हद तक हाथ में, कुछ हद तक नहीं है. अगर नर्चरिंग नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा, कुछ करोगे तो आ जाएगा. लेट्स से 20% शो अप, देन कॉस्ट पर शो अप आपका निकल गया, पूरा निकल के आपका एंड में फनल में एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा. कितने लोगों को अपनी एवरेज ऑर्डर वैल्यू नहीं पता थी? हाथ खड़े कर लो. ठीक है. सो गाइज दिस विल गिव यू द एंटायर थिंग. मतलब
एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब कितने लोगों को नहीं पता है? एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब इसका मेन यूटिलिटी क्या है? मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकते हैं? किस पे? यस यस करेक्ट करेक्ट। मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकते हैं एक लीड को अक्वायर करने में? मतलब मैं 250 रुपए जिस दिन मेरा फ्री मास्टर क्लास में हिट हुआ, मेरा फनल ऑलमोस्ट 0 पे आ सकता है। गॉट इट? गॉट इट? मतलब ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑफ कस्टमर है। तो अभी हमारा कितना जा रहा था ऊपर? इट वाज 50। गॉट इट? So now what I'm going to do, I'm just going to make up a copy of this right now and इसको जाके अपना कॉपी बना लेना। So this is the numbers draining। आपके नंबर्स शीट पे इस तरीके से अपने सारे लिख लीजिए। पेड फ्री। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया। आप जिसके साथ भी आप काम करते हो उनको बोलिए कि this has been done and please prepare it। So the second sheet is this numbers draining। Got it? Got it? चलिए, now let's move to the sixth part। चलिए आगे, ठीक है। लेट्स मूव टू द सिक्स पार्ट गाइस। वेरी ब्यूटीफुल थिंग, मतलब बहुत अच्छी चीज है। इसको समझते हैं। तो कभी कभी आई थिंक, मुझे याद नहीं कोई कौन से मास्टरमाइंड में था, बट इट वाज देयर। हुआ ऐसा कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि यार अब मतलब पता नहीं, ऐसा होता है ना कि यार मन ही नहीं करता कुछ करने का। यस और नो? यस और नो? आज सीधी बातें पर नहीं करता, मन नहीं हो रहा, अजीब सा ही लग रहा है। ठीक है, सोच रहे हैं, लैला मजनू बने पड़े हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, बैठे हुए हैं। ठीक है, वी डू नॉट नो, वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर व्हाट इज गोइंग इनसाइड। तो और इधर सब बिगड़ भी रहा है। तो फिर आप शॉर्टकट ढूंढते हो लाइफ में कि क्या करना है। तो शॉर्टकट ये आया कि आप लोगों ने बहुत सारे एड शूट करे होंगे। इज दैट राइट? बहुत सारे एड शूट करे होंगे। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग ये करते हैं, लेकिन दो तरीके के ऐड बनते हैं। एक ऐड बनता है सीपीएल के लिए और एक ऐड बनता है किसके लिए? दूसरा ऐड किसके लिए बनता है? सीपी? थोड़ा सा उसको डेप्थ में लेके बताओ। एक ऐड बनता है लीड्स के लिए, दूसरा ऐड किसके लिए बनता है? गेस करो, थोड़ा थोड़ा गेस करो। एक्विजिशन, थोड़ा सा थोड़ा पकड़ लो, अंदर की बात बता दो। हाँ, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ऐड हम बनाते भी मेरे को सीपीएल कम हो जाए, मेरे पास लीड आए ज्यादा से ज्यादा। हाँ। एक ये होता है जो लीड आए वो क्वालिफाइड लीड आए, ताकि वो ऑलरेडी मेरी जो ऐड देखकर उसको क्रक्स पता चल जाए और वो जल्दी हमारा कन्वर्ट, जब मैं सेल्स पिच उसको दूं तो वो कन्वर्जन ज्यादा हो रहा है। हाँ, ठीक है, वेरी नाइस, समवेयर लाइक दैट। ये आपने 100 ऐड बनाए, 80-20 रूल लगेगा। यू जस्ट विल फाइंड 20% द एड्स व्हिच आर वर्किंग। नाउ आई जस्ट शो यू वेरी ब्रीफ वे व्हाट वी डिड। ठीक है, ऑल्दो इट वर्कड बिफोर दिस, इससे पहले मैंने किया था, काम किया। इस बार ये काम नहीं किया, वी आर मतलब हम लोग खुद फिगर आउट नहीं कर पाए क्यों काम नहीं किया। यू कैन ट्राई दिस। पहले काम किया, इस बार काम नहीं किया। ठीक है, व्हाट इज दिस? सो वी हैव बीन रनिंग आवर एडवर्टाइजमेंट फॉर a lot of time। बहुत टाइम से हम लोग अपने एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं। सो व्हाट यू विल सी, I'll just take it to you. I'll just take you to the fast onto the ads thing. So we have one of the ad account. It's called Blessed India's Photographers Club account. ठीक है, अब देखते रहना। दो ऐड बनते हैं। एक बनता है ऐड आपका सीपीएल के लिए, क्या रजिस्ट्रेशन के लिए। एक ऐड आपका बनता है कि उससे मुझे एक्चुअल में परचेज आ रही है कि नहीं, एड1 की। कितने लोगों को ये बात पता है? एड्स की दो यूटिलिटी है। फर्स्ट इज भाई मुझे परचेज आए, मतलब मेरा सीपीएल कितना आया, वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन आया, और एंड देन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एड have I got the conversions on the back end purchases? इतना क्लियर है? Is it clear? ठीक है, if you know about it then that is very good। but तो अब देखना है यहाँ पे। so अभी आप जाएंगे यहाँ पे, you will see maximum over here। I'll just ये देखना, ये गया एंड यहाँ पे गए, मैंने मैक्सिमम कर दिया। ठीक है, ये तब थोड़े गरीबी के दिन थे जब पूरे साल में 42 लाख रुपए खर्चा करते थे। ठीक है so I'll just share with you। so I'll just see over here and you will see यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वेबसाइट परचेज। आर यू एबल टू सी दिस? अब यहाँ पे एक फिल्टर होता है, देखो ये आपको करना नहीं है। एन एंटरप्रेन्योर डज नॉट नीड टू डू एवरीथिंग, बट ही नीड्स टू नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? You do not need to do everything, but at least you need to know how does it work. So that is why I'm sharing with you. So you just go with your team member and यहाँ पे आप जाएंगे, you come up over here, website purchases। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है highest to lowest। If you are not able to see this, खुद जाके कर सकते हो। You go over here
You go to highest to lowest. Got it? Now what it will do? Over the entire point of time, ठीक है, मतलब ये कौन लोग हैं? ये लोगों ने मेरा L1 खरीदा है, ठीक है. अब इसमें इसके अंदर जाता हूं, आई गो इनसाइड दिस, और एड सेट है. इस वाले एड सेट से मुझे 37 परचेज आए. मैं अंदर गया, आई गो ऑन अ मच मोर डीपर लेवल, एंड आई फाउंड आउट कि भाई कहां से आए परचेज, जरा देखे तो. एंड आई फाउंड आउट 19 इससे आए हैं, 16 इससे आए हैं. एक्चुअल में आप फेसबुक को रिसर्च इनसाइट्स का पैसा देते हो. आर यू एबल टू सी दिस राइट नाउ? मतलब अब आपने इतने सारे एड्स की टेस्टिंग करी, लेकिन आपके परचेज किससे आए? सिर्फ ये 2 एड्स से आए. किससे आए? एक ये एड था विच वर्क. मतलब दिस एड्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू द CPL ओनली, बट विच एड्स आर वर्किंग फॉर यू. ठीक है, यहां पे आए, एंड देन व्हेन यू कम अप ओवर हियर, you are onto this, and it will just open. What I did a very simple thing. We have a sheet, and this is called ads creative sheet. ठीक है, and यहां पे गया मैं winning ads by ABD. जितने भी मेरे winning ads थे, देख रहे हो आप, जितने भी मेरे winning ads थे, I just copied सबके links निकाल के यहाँ पे I pasted it. ठीक है. Now can you tell me what is the utility of this right now? Old is gold ads. देखो यहाँ लिखा हुआ है old is gold ads. यहाँ पे लिखा हुआ है raw video sharing link. ठीक है, फाइनल गूगल ड्राइव लिंक ये लिखा हुआ है. और ये सारे एड्स के लिंक्स हैं. When you go over here, what will happen? ये नहीं खुल रहा है. Let me just open this once again. When you go over here, यहाँ पे प्रीव्यू आएगा और हर एक एडवर्टीजमेंट का एक लिंक होता है. एक एडवर्टीजमेंट का लिंक होता है. And when you are inside this, जो आप यहाँ पर हो, when you are inside this, then you will see ये आपके सारे एड्स हैं. What I did simply, मैंने अपने टीम मेंबर को बोला, देखो भाई ये सारे ऐड हैं, एड्स नहीं बन रहे, इनके रॉ एड्स निकालो जहां पे भी छुपे हुए हैं. अगर आप गूगल शीट मेंटेन करते होंगे और आप अपने एडवर्टीजमेंट ड्राइव पे अपलोड करते होंगे, तो हर एक एडवर्टीजमेंट का रॉ एड्स का गूगल ड्राइव लिंक होता है. नहीं होता तो मैं दिखा देता हूं. यू सी ओवर हियर, सो आई टेल यू, इफ आई गो ओवर हियर फ्रीलांसर फनल, यू विल सी यहां क्या लिखा हुआ है, रॉ वीडियो लिंक लिखा हुआ है आपका, रॉ वीडियो लिंक. और यहां क्या लिखा हुआ है, फाइनल एडिटेड लिंक. आर यू एबल टू सी दिस? यू जस्ट आस्क द टीम, भाई ये एड कुछ समय पहले चला था, इसको नए तरीके से एड्स को एडिट कर दो, चला दो, एंड अगर ये पहले हुक था तो उसको आगे पीछे कर दो, और 3 साल पहले जो एड चला या 2 साल पहले एड चला, अब जो वो दोबारा आता है नए तरीके से, इट लुक्स न्यू टू द मार्केट. यस और नो? नया लगता है ना? एंड अगेन इट स्टार्ट्स टू वर्क. It starts to work. Done? ठीक है. All right. So now this is the 4th point. In the last Mumbai वाला master class, master वाला session, क्या बोलते हैं उसको, mastermind वाला session, Himanshu gave us an activity on the second day. It was about vision and mission. ठीक है. He showed us all the big companies on the planet, and he was showing us कि एप्पल का विजन ये है, एप्पल वर्क्स लाइक दिस, एप्पल के वैल्यू सिस्टम ये है, इनोवेशन, स्पीड, दिस. देन ही शोड गूगल, देन ही शोड दिस, देन ही शोड दिस. दिस इज लाइक दैट, राइट? इज इट लाइक दैट? हाउ मेनी ऑफ यू sat with your team and shared your values with the team? No. Vishal bhai has done it. I'll be very much honest, मैंने लिखे लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाया. ठीक है, फिर I wrote it, but I was not able to do with my team. But what I did, I wrote the entire value system on that day. ठीक है, this is the time the team is there, and we are going to share all the values, जो भी हमारे values हैं. जैसे you see over here, be a go getter, focus, question, ये सारे मैंने कंपनीज के, जितने भी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज हैं, उनके वैल्यू सिस्टम निकाले और यहाँ पे डाले. बिकॉज इफ वी हैव टू बी द बेस्ट, then we have to inculcate this value system in the team. This time after this session, we are going to have it. If you want this, see this, I'll show you. So this says total ownership and involvement. Sometimes it happens with your team, आपने task दिया, sir वो तो हुआ नहीं, sir उसने नहीं दिया. There is no ownership. If it were their task, own task, they would have gone all the way to get it done, right? So if you think the total ownership and involvement is one of the values that you can bring, then in that case, it will be one of the value. Then giving back to society, obsession of improvement, then responsibility and accountability, inspiration from everyone, kindness and love, just 1% improvement every day. I wrote all the values of all the companies, and guys,
we are able to implement this time, right? So I'll share this with you as well, right? And now last thing I want to share. Shall I get एक AI का prompt है that will help you to get lots and lots of advertisement ideas in just few minutes. I don't know. Some people, I'll tell you guys, I'll tell you one thing very much honestly, including me, including a lot of people. I have my own team which works with me, which run my ads. There was a time when I would feel like, यार ये मुझको स्क्रिप्ट दे, ये मुझको करके दे, ठीक है? I used to be like, and there would be no involvement. Involvement मतलब it would be like, भाई मुझे भेजो जल्दी से मैं कर दूंगा. But if you are not into the game by yourself, तो चीजें मिस होती हैं, ठीक है? मतलब आपको अंदर से कुछ नहीं आ रहा है, एक होता है ना अपना बनाई हुई ड्राइंग से सबको प्यार होता है, ठीक है? So what I understood and with all the coaches कि भाई you know, if one of the RGA activity that you need to do, revenue generation activity as a coach that we need to do is we need to find very powerful and winning advertisements. Is it right? ऐसा ही होता है, यही तो हमारा काम धंधा है. और क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाहर आपके वेबिनार में पता है कब होती है, अगर आप विजुअलाइज करोगे, एनालाइज करोगे, जिस दिन आपने कोई नया ऐड दिया होता है और वो चल जाता है, बाहर आती है वेबिनार में कि नहीं हुआ है कि नहीं, फिर हम सोचते हैं यार 3-4 ऐड तो बना के दिए सर, बढ़िया हो गया. पता होने के बाद भी हम इसमें वो करते हैं, वी डिलेट. सो आई फाउंड आउट कि यार मुझे आइडियाज नहीं आ रहे और मैं टीम को बोल रहा हूं, उन पे बोल रहा हूं कि तुम मुझे दो, मजा नहीं आ रहा है. तो आई फाउंड आउट अ वे टू फाइंड द very well written script in just with few AI prompts. So I'll just show this to you right now. So here we go. This is called ABD prompts. Although मैंने कहीं से लिए, मैंने अपना नाम लगा दिया, इस पे ठप्पा लगा दिया, ठीक है? ये मुझे कहीं दिखे, मैंने कहा ठीक है, डॉक्यूमेंट वेला आप ABD prompts लिखा and it is done. So I'll tell you what is this. So I'll just take you over here, Chat GPT. अब देख कर मैजिक दिखना, ये बहुत मैंने लाइव मेरे कई बार कराया है. वैसे मैंने अभी आइस में ही कराया है 1 घंटा टाइम लेके, बट अभी मैं फट से दिखाने की कोशिश करूंगा. So this is the first prompt that we give. Act as a coach who helps this act. मैं थोड़ा सा zoom कर देता हूँ. I'll just show you the magic to you. And ये क्या बोलता है? Act as a coach who helps this of India to start their this. जो भी है अपनी niche के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना. This is the target audience. ये TG है आपका, and this is the outcome. Is it clear? इसके बाद वाला outcome है, ठीक है? To grow, ठीक है? ये outcome है, अपने हिसाब से चेंज करना. I'll just share with you right now into the thing. ये last है वैशाली, this is the last. अब देखिए, this is a very simple prompt, guys. Very simple prompt which I've been sharing with a lot of people, and so this now we will use this first prompt to give the avatar. क्या करेंगे आप? अवतार देंगे चैट जीपीटी को. बहुत सिंपल है, और ये अपने पसंद की स्क्रिप्ट बोलने में बहुत मजा आता है कि नहीं? मजा आता है नहीं कि नहीं? अब ललित सर ने केकड़ा उठाया था, और कितना हिट हो गया उससे, पूरी दुनिया में ललित सर केकड़े से हिट है कि नहीं? सर का नया लोगो केकड़ा है. So you go over here and as act as a coach who helps wedding photographers. This is you give the avatar. अब ये जो बोलेगा उसको सुनना नहीं, क्या बोलेगा इसको लिखने देना है, ठीक है? ये लिखता रहेगा, आप पीछे जाएंगे चुपचाप, अपने यहाँ जाएंगे, अपनी वाली शीट पर जाएंगे. दूसरा अवतार इसको देंगे, आइडेंटिफाई द टॉप 10 पेन पॉइंट्स, फियर्स, मोटिव्स. मैं पढ़ के बता देता हूं, ठीक है? क्या है? फियर्स, मोटिव्स, क्वेश्चंस, डिजायर्स एंड रोड ब्लॉक्स. समझ में आ रहा है? आपके ऑडियंस के एक्चुअल में एडवर्टीजमेंट एड्स किसके अराउंड बनते हैं? उनके डर के अराउंड बनाते हो. इज इट राइट? उनके लाइफ में मोटिवेशंस के अराउंड बनाते हो कि वो क्या करना चाहते हैं. पेसिमिस्ट ऑडियंस एंड ऑप्टिमिस्ट ऑडियंस, उनकी लाइफ में कुछ क्वेश्चंस चल रहे होंगे, उसके अराउंड बना दोगे तो खुश हो जाते हैं. डिजायर से कुछ कहीं जाना चाहते हैं. रोड ब्लॉक्स एंड रिजल्ट्स. जस्ट कॉपी दिस एंटायर फ्रॉम, कम अप ओवर हियर, पेस्ट, जस्ट गो ओवर हियर एंड पेस्ट इट. ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें मैंने लिख दिया है, एंड देन एंटर इट. दिस इज सेकंड थिंग. इसको स्टॉप करो. अब इसकी कहानी यहीं तक है, अब बस यहां तक इसकी. अब यहां से सेकंड पार्ट, ठीक है? अभी आया. What it will do, it will start to think. थोड़ा भी it will start to think. हाँ, थोड़ा सोच रहा है, ठीक है? ओवर थिंकिंग हो रहा है, एनालिसिस एंड पैरालिसिस हो रहा है. आज ना मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है. एक्चुअली कुछ गड़बड़, मेरे लैपटॉप में मुझे गड़बड़ लग रहा है.
इतना तो नहीं हो सकता किसी का नेट नहीं चलेगा। आया आया आया, हाँ आया। ओह, स्ट्रेस आउट गाइस, प्लीज प्लीज गाइस, स्ट्रेस आउट। So here it will start to show you the all the pain point. ओहो, इसमें तो समय लगेगा रोहित भाई, पकड़ रहा है। ठीक है, अब सुनो, ये सेकंड प्रॉम्प्ट है। जैसे आपने सेकंड प्रॉम्प्ट डाला, अब क्या होगा, अब आपको ये दिख रहा है पहला पेन पॉइंट क्या है, हाई कंपटीशन। तो साक्षी, क्या आपके नीचे में हाई कंपटीशन के अराउंड ऐड बन सकता है, जॉब का कुछ बना सकते हो, बन सकता है, आइडिया आ गया आपको। इनकंसिस्टेंट इनकम आ गई, इनकंसिस्टेंट इनकम इज वन ऑफ द चैलेंज, दिस इज सेकंड थिंग। इसी तरीके से व्हाट इट विल डू, इट विल गिव यू अ डिटेल शीट लाइक दिस। लेट मी सी, अगर मेरा शीट कोई ओपन होगा तो लेट मी जस्ट चेक। हाँ, मैं सब सब देके जाऊंगा अभी के भी, बात का कोई चक्कर ही नहीं। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या किया इसने, इसने मुझे टॉप 10 पेन पॉइंट्स दिए अपनी ऑडियंस के, दिख रहे हैं सारे टॉप 10 पेन पॉइंट्स हैं, ये दे दिया। फिर इसने मुझे टॉप 10 फियर्स दिए मेरी ऑडियंस के, ठीक है। फिर टॉप 10 मोटिव्स दिए। अब इस पे ऐड कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है भाई। फियर ऑफ नॉट मेकिंग इनफ मनी टू सस्टेन द बिजनेस, एड्स बन जाएगा इस पे। तो ऐड बनेगा कि नहीं बनेगा, सोचने, आपको फ्रिक्शन ऐड बनाने में नहीं आता है, मैं आपको बताऊं, आपको फ्रिक्शन आता है सोचने में। इज इट, सच बोल रहा हूं कि नहीं, कि बनाऊंगा क्या, और इतना अवेयरनेस नहीं कि ये पकड़ पाओ कि मुझे सोचने में फ्रिक्शन आ रहा है, करने में कम है। एक बार क्लैरिटी के साथ आ गया तो करने लग जाओगे, चलो बना लेते हैं। सो आपके सामने आ गया, यू स्टार्ट टू डू, ऑलराइट। एंड देन आफ्टर दैट what you need to do, the last part is very simple. The last part is actually, कहाँ चला गया last part ना, and this is the last part. It says, can you create advertisement scripts around the first point? First point क्या था, which is top 10 pain points. So जितने भी इसने pain points दिए हैं competition, तो what I've instructed ChatGPT to do, can you create advertisement scripts around the first point? I want to create video ads to invite my target audience in my master class. अगर आप 1-to-1 करते तो आप क्या बोलोगे, 1-to-1 session, alright? Please create hooks and scripts around every sub points. क्या बोला मैंने इसको, hooks भी create करो और scripts भी create करो. Please give one ad video ad script around every sub point in less than 100 words. आपको 200 वर्ड चाहिए, 300 वर्ड चाहिए, वो आपकी इच्छा है। फोकस ऑन द हुक मोर, हुक पे ज्यादा फोकस करो। The more powerful the hook is, the more the audience retention. All right. Also include a detailed body of the ad script, include the call to action as well. ये सब चाहिए होता है एड में, सीटी अच्छा चाहिए होता है, बॉडी अच्छी चाहिए होती है, राइट? इज इट गुड? कॉपी इट गाइस, कम अप ओवर हियर। अब इसने जो बोला जो नहीं बोला छोड़ देंगे, एंटर करके देखते हैं क्या बोलता है। इसको स्टॉप कर दो एंड लेट मी जस्ट टेस्ट इट। अच्छा, इफ आई गिव यू दिस शीट ओनली, अच्छा शीट ही दे देते हैं ना, कर अभी के अभी अगर करना चाहोगे तो तीनों फटफट आप डाल के देख लो एंड यू विल सी द थिंग। सो ये हियर इज द फर्स्ट स्क्रिप्ट, इज द सेकंड एंड हियर इज द थर्ड। कॉपी द लिंक, डन। एंड ये देखो, इसका कॉपी बना लेना। एवरीवन प्लीज मेक अ कॉपी ऑफ इट and change it according to your, would you like to do it, people who are on the laptop, would you like to do it? अभी के अभी we'll just have go with 5 minutes more and copy, मैंने दे दिया आपको लिंक, ओपन कीजिए उसको, इसको कॉपी बन जाएगा। पहला प्रॉम्प्ट डालिए, चेंज कीजिए, और फिर कुछ चेंज नहीं करना है, बस पहला ही नीच को पहला प्रॉम्प्ट चेंज करेंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? So the first is act as a coach, give this, then second को as it is copy paste करेंगे, and then third को भी as it is copy paste करेंगे, ठीक है? I'll just try to see कि थर्ड वाला चलता है कि नहीं। So the people, let me just, so guys देखो कैसे करना है, ये act as a coach, ये वाला मैंने पहला prompt डाला, go to the chat GPT, paste it, and Vedete dove letti opere bravo. देखो इसने ये दे दिया फर्स्ट, स्टॉप इट, go to the second one, identify this, and then come up over here, paste it,
उसको छोड़ दो और एंटर मारो। अभी इसने इसे सेकंड लिखना स्टार्ट कर दिया। देखो ये फर्स्ट आपने एग्जांपल 1 दिया, पहले ये दिया, इसको दिया, फिर एंटर किया, एंटर हो गया उसको, देन सेकंड किया, सेकंड एंटर हो गया, एंड देन सी नो इट इज राइटिंग प्रॉपर्ली। दिख रहा है आपको? इसे सारे मोटिव्स लिख दिए, सारे सब कुछ लिख दिया इसने, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, whatever it has been shared over here, what you will do, simply you will just go to the last prompt, which is this. You go to the last one and you type the third prompt, can you create a advertisement video scripts, copy this, come up over here, desires also aa gaye, desires also, it is done, ठीक है। desired results, roadblocks, desires, everything is here, clear. Now the third script is this, and it will start to give the advertisement scripts now around every pain point. Now, here are top 10 video ad scripts. Now initial investment, hook, script. Now the thing is, if you try to copy it exactly, it will fail. क्या? If you try to copy it exactly, मुंह के बल गिरोगे बिल्कुल जमीन पे धड़ाम से, you will fail. Why? Because it is just to give you an idea कि मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूं या बोल सकती हूं। अपने जो पे इतना हमें जो दिमाग मिला है, और जो we have to apply your own acumen into this, but it is good to give us the start, and then you put in the sketch wow or anything, एक साथ बैठ के एडवर्टाइजमेंट बना के, and this is done. So this is today's story. This is done, right? I hope you liked this video. If you liked it, share it with someone who would get immense value from this. Comment in the chat box your favorite part, and if you want more videos like this, let me know. I'll see you in the next one.